secured All India rank 150. I have secured AIR 167. I have secured rank 251. And I would like to thank Simran IAS for helping me achieve my dreams, especially Pamela ma'am, who has provided invaluable mentorship. And also, Simran IAS has this wonderful initiative called Learn by Maps. Learn by Maps. Learn by Maps. Learn by Maps के मटेरियल से मुझे माइंड मैप, फ्लोचार्ट, ट्रिक्स और टाइमलाइंस मिले जिनसे कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो गई। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਮਲ ਮੈਮ ਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਮ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello everyone, this is Dr. Prashant. I've secured rank 78 in the recently conducted UPSC Civil Services for the content that they've delivered through the Learn by Maps, for which I've been able to use the same and have referred for my prelims and mains journey. to their Learn by Maps material which helped me in my prelims and mains answer writing. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई in presenting my answers in a better and structured way. I have secured All India rank 150. I have secured AIR 167. I have secured rank 251. And I would like to thank Simran IAS for helping me achieve my dreams, especially Pamela ma'am, who has provided invaluable mentorship. And also, Simran IAS has this wonderful initiative called Learn by Maps. Learn by Maps. Learn by Maps. Learn by Maps. Learn by Maps के मटेरियल से मुझे माइंड मैप, फ्लोचार्ट, ट्रिक्स और टाइमलाइंस मिले जिनसे कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो गई। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਮਲ ਮੈਮ ਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਮ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਆਈਐਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello everyone, this is Dr. Prashant. I've secured rank 78 in the recently conducted UPSC Civil Services for the content that they've delivered through the Learn by Maps, for which I've been able to use the same and have referred for my prelims and mains journey. to their Learn by Maps material which helped me in my prelims and mains answer writing. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई in presenting my answers in a better and structured way. A very good morning and very warm welcome to everyone. Please turn on your cameras. Good morning, ma'am. Good Very morning. good morning. Very good morning, Good morning, everyone. Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Wow, very good morning. So सभी अपना कैमरास ऑन कर सकते हैं गाइस, क्योंकि देखो मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वैसे बहुत जगह आप लोग देखते हो ऑफलाइन में भी मुझे, पर फिर भी इस वर्कशॉप को आप अटेंड करने इसीलिए आए हो
ताकि आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सको। मैं भी कल दिन को आप मुझे दिखो तो मुझे पता लगे ना, हाँ मैंने इनको देखा है कभी। सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस जल्दी से, एंड वी विल स्टार्ट द लेक्चर। Okay, I want to understand my audience first. Very good morning, Garima. Very good morning, everyone. I want to understand my audience first कि आप लोग कितने लोग जो है यूपीएससी 2027, 8 और 29 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उससे भी बियॉन्ड आए हैं तो वो भी बता सकते हैं। प्लीज टेल मी कि आप कौन से ईयर को टारगेट कर रहे हैं। Into the chat section guys, फटाफट से into the chat section. वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई ऑफिस में है या लाइब्रेरी में है या किसी भी और चीज में बिजी है देन इट्स कम्प्लीटली ओके, बट मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना कैमरा जरूर ऑन करो। 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी विच ईयर यू आर टारगेटिंग? 2030। मनत सिंह, मनत आप कौन सी क्लास में हैं? ट्वेंटी 28, okay. Maybe into the first year of the graduation, 27, 28, ma'am BCom first year. Okay, BCom first year का मतलब ये 29 में आप एलिजिबल हो जाएंगे। 29, ठीक है, okay. I just completed my microbiology, that is your recently. Okay, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस ईयर को जो टारगेट कर रहे हैं वो बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। Am I right? इस ईयर को जो टारगेट कर रहे हैं दैट इज योर 27। इज इट ट्रू? मैं उस हिसाब से चीजें टेकअप करूंगी। ओके 27 है ना, है ओके ठीक है। सो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, टॉपिक एक है। द टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एज अ बिगिनर। एम आई राइट? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर फर्स्ट, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू वन आइडियाज। कुछ पाथ्स बताऊंगी, कुछ प्रिंसिपल्स डेफिनेटली हैं दैट यू मस्ट फॉलो फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। मैं लास्ट फ्राइडे को, कोई है यहाँ पे जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की थी? लास्ट फ्राइडे को मेरी क्लास थी और टॉपिक का नाम था, क्या था टॉपिक? दैट इज योर लेबर लॉस। तो मैंने वहां पे स्टार्ट पता कैसे की थी? क्योंकि फ्राइडेज आर समथिंग जहां पे मैं एक यूनिवर्सल, एक ना आपका करंट बेस्ड थीम उठाती हूँ, एंड जनरली मैं उसको इस तरीके से लेती हूँ कि कोई भी आके उसको समझ सकता है उस टॉपिक को। राइट, इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको काम आएगा। इट डजेंट मैटर कि आप किसी और एकेडमी में हैं, इट डजेंट मैटर कि आप हमारे स्टूडेंट हैं नहीं है, आपको वो क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। लास्ट टाइम मेरे वो टॉपिक था दैट वाज योर लेबर लॉस थी, और उसमें सबसे पहला डिस्क्लेमर मैंने पता क्या था? देखो बच्चों, ये जो हमारा, मैंने बताया था कि जो हमारे कितने लॉज हैं इंडिया में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उस क्लास में था, कितने लॉज है उस हमारे इंडिया में? हाउ मेनी लॉज आर देयर इन इंडिया? टोटल लॉज। हम आर्टिकल्स भी बता सकते हैं, शेड्यूल भी बता सकते हैं, बट ये रजनीकांत को भी नहीं बता होगा कि हमारे यहाँ पे कितने लॉज हैं। सो वैसे ही रजनीकांत के पास भी आंसर नहीं है कि देयर इज नो यूनिवर्सल दैट इज योर आंसर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एज अ बिगनर, बट देयर इज अ सेट ऑफ योर प्रिंसिपल्स दैट यू मस्ट एंड मस्ट फॉलो गाइस। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट क्लास। हमारा इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स कब है? माय क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी 2027 का। इट डजेंट मैटर कि आप 28 देने वाले हो, 29 देने वाले हो, 30 देने वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए कि 20, यस दैट इज 23rd ऑफ योर मंथ। थैंक यू सो मच।
आज मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी बच्चे, बहुत सारी ऐसी चीजें करवाऊंगी जो आप लोगों के बहुत तरीके से काम आ सकती हैं। बट द फर्स्ट एजेंडा, अगर आप कोई भी ईयर टारगेट कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स कब है। सो दैट इज योर 23rd of May को, क्योंकि पहले ही हमारा यूपीएससी जो है ये सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देता है कि कब है हमारा प्रीलिम्स, कब है हमारी नोटिफिकेशन कब आएगी। सो आई विल शो यू वंस। यूपीएससी एक बहुत अच्छे शेड्यूल में रहता है। यूपीएससी पूरा पहले ही बता देता है कि 13th of January को जी नोटिफिकेशन आ जाएगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी योर 2nd of February। प्रीलिम्स हम लोगों का 23rd of May होगा और मेंस हम लोगों का 20th of August होगा। जैसे अभी भी बच्चों का जो है अगस्त में ही है, 20th के आसपास ही हम लोगों के मेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे जो इस साल मेंस लिख रहे हैं। उसके बाद जनवरी और अप्रैल के बीच में हम लोगों के इंटरव्यूज होते हैं और फाइनल हम लोगों के रिजल्ट जो है अप्रैल या मई के आसपास, एक्सटेंडिंग अपॉन द टाइम कि किस तरीके से रहेगा, तो वो आप लोगों का एक एजेंडा रहता है। समझ आई जी एवरीवन? अब ये समझना क्यों जरूरी है, जितने भी ये सोच रहे हैं कि हमने 2028 में देना है, 29 में देना है, 30 में देना है, 27 वालों को तो आई गेस पता ही होगा कि बहुत कम टाइम रह गया। नॉट इवन योर 1 month, 1 year इज लेफ्ट। मई में पेपर है, अगस्त आ चुका है, आज 2nd of August है, तो दैट मीन्स यू नीड टू गेट ऑन योर टोज। और इनफैक्ट जो बाकी लोग भी हैं जो 2028, 29 और 30 के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं, लेट मी टेल यू, टाइम फ्लाइज लाइक दिस। ऐसे उड़ जाता है। जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में हैं, दिमाग खोल के सुनना इस चीज को, जो लोग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में तैयारी शुरू कर रहे हैं, डोंट थिंक यू हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, because you need to maintain the balance of your college as well as for your UPSC preparation. वो effectively आप लोगों को शायद कुछ महीने ही मिलते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप अगर ढंग से यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली जीत सकते हो इसको, इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हमारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जहां पे हम हमेशा नहीं कर पाएंगे हमारे अच्छे से प्रिपरेशन। देयर विल बी टाइम व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल, we lost someone, maybe someone is getting married or someone is getting born. This is a part and parcel of your life. So effectively आप लोगों को बहुत टाइम नहीं मिलता। जितने भी यहाँ पे 28, 29, 30 को कर रहे हैं, दिस इज अ पर्सनल एडवाइस, आप मुझे हमेशा याद रखोगे। अगर आपने मेरी एडवाइस मानी तो ये टाइम पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब निकल गया। सो आपको नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स को दिमाग में रखना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स कब है, मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करूं। एवरी टाइम यू आर नॉट एलिजिबल, आई अंडरस्टैंड यू आर नॉट एलिजिबल, जैसे अमनत ने बताया, या नवनीत हो सकती है, या बासु भी है, आई नो दम, मतलब कि इन लोगों को तो चलो मैं पर्सनली जानती हूँ। तो आपको मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि ये टाइम जो निकल जाएगा, या फिर आपका जो इमीडिएट टाइम है, आपको लग रहा है अभी आपकी एलिजिबल नहीं हो, बट स्टिल फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर, स्टिल फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर। क्या मुझे, अच्छा 23rd ऑफ हमारे मई में हमारा एग्जाम है, और जिस दिन 23rd ऑफ मई को आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लो और उसको अटेम्प्ट करना शुरू करो। यू विल फील कि तुम्हें कितना आता है, तुम कैसा फील करते हो, तुमने कभी इन चीजों के बारे में सुना भी है या पढ़ा, याद नहीं आ रहा। प्रिपेयर एट दैट पेस अगर आप वाकई ही यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो। यूपीएससी आज की डेट में कोई केक वॉक नहीं है। दिस इज वर्ल्ड्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एंड यू हैव टू get strong by mental well-being.
आपको स्ट्रांग होना है, नॉट जस्ट बाय योर बुक्स रीडिंग या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इस यूपीएससी एग्जाम के लिए। एंड रिजल्ट्स आर ब्यूटीफुल। कल मैं गवर्नर हाउस गई थी एंड दैट वाज अ रियली privilege to me because of my students who have written your PCS mains and who are writing your UPSC mains this time. UPSC mains वाले कोई नहीं आए क्योंकि वो ऑब्वियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके रियल मार्क, आपके रियल टाइम एग्जाम्स चल रहे हैं, बट पीसीएस के मेंस के स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको सबसे गवर्नर जी से आपकी ब्लेसिंग्स मिली, उनको मौका मिला उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का। यू नो, ये लाइफ ऐसी ही नहीं मिलती। मेरे गूज बम्स खड़े हो गए जब आई वाज वाचिंग माय स्टूडेंट्स ओवर देयर। जो एक टीचर के लिए पता है ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या होती है, तो उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है। मेरे लिए जैसे मेरा बेटा चंद परवान है, वैसे ही मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए उनकी सक्सेस उतनी ही मैटर करती है जितनी चंद परवान की। एंड yesterday was a beautiful day of my life, जहाँ पे मैं जब गई तो इतने सारे लोग थे, बहुत कम लोगों के पैर छू रहे थे बच्चे, एंड आई वॉज ब्लेस्ड टू बी वन ऑफ देम। पर वो वाइब तुम्हें तब आएगी जब तुम मेंटली स्ट्रांग होगे। देयर विल बी टाइम, और इनफैक्ट उन लोगों को जिनके साथ जिन्होंने मेंस लिखा है, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ पीसीएस की, आई विल टेल यू वन थिंग, वो लोग ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं उनको कुछ बोल देती हूँ ऐसा कभी नहीं होता वो ना सुने, और इनफैक्ट वो मुझे रिमाइंड कराते हैं कि मैम आपने ये बोला था, हमने ये किया है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू। तुमने सोचा जरूर, मैंने तुम्हें बोला आज तुम्हें ये सोचना है कि 23 अगस्त को तुम्हारा पेपर है, तुमने उस दिन प्रिंट आउट निकाल के बैठना है। इट डजंट मैटर कितना स्कोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द प्रिपरेशन। क्या आ रहा है यार, मुझे कितना आता है, मैंने ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा है इसके रिलेशन में, या मैं कोचिंग में क्या पढ़ रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस दैट आई फाउंड, द वन हु जस्ट सेड कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। कल भी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे जो बोल रहे थे कि हम तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, और आई वाज सो अमेज्ड कि ठीक है कि शायद वो बच्चे अभी सोच रहे हैं, सोचना बहुत डिफरेंट और वहां तक पहुंचना बहुत डिफरेंट। बट उनमें से अगर 5 बच्चे या 10 बच्चे भी अगर निकल जाते हैं तो दैट इज व्हाट वी वांट। सो आज की जितनी बातें होंगी बहुत ब्यूटीफुल बातें, बहुत सारी आप लोगों को ऐसी चीजें दूंगी, ऐसी अवेकनिंग मोमेंट्स होंगी, ओ अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोचिंग में है, ये कुछ भी, बट मेक श्योर कि तुम उसको फॉलो करो। जस्ट डोंट थिंक एंड लिसन एंड गो एंड सेट आइडली, हो जाएगा यार कर लेंगे। बी अकाउंटेबल टू दोज योर स्टेटमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू if you want to crack your UPSC. One thing that you need to do for your UPSC preparation is, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से वाकई ही यूपीएससी हो सकता है, एंड आप लोग बहुत कम ट्रॉमा में जाओगे उससे, आपकी यूपीएससी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। दैट वन थिंग, बताओ सबको क्या क्या लगता है? अच्छा, यू कैन टाइप इनटू द चैट सेक्शन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और बता सकते हो ऐसी एक चीज क्या है जो वाकई आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा काम आएगी आपको। The biggest discovery of my life, mentoring over 1 decade of my life, I am
लाइक 40 राइट नाउ. मैं 30s में ही टीचर बन चुकी थी, और इनफैक्ट उससे पहले 25-26 में आई हैव स्टार्टेड टीचिंग. तो द ब्यूटिफुल थिंग इज कि what I have discovered in my life, the single most important criteria is how to crunch your time. Please write down how to crunch your time. Achieving more in less time. Achieving more in your less time. प्लीज सभी अपने कैमरास ऑन करो, ऑफ नहीं करने. सभी मेरी बात सुनो, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, लेटेस्ट ज्वाइन किया, मेरी बात ध्यान से सुनो. आप लोग मुझे बहुत जगह देखते होगे, पता नहीं आप इंस्टाग्राम से आए हो, पता नहीं आप यूट्यूब से आए हो, पता नहीं आप कैसे आए हो यहाँ पे, बट इतनी मेहनत ना, आप मेरी ये वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस जो कंटेंट में डिलीवर करूंगी आप लोगों को, आप बहुत आराम से देख सकते हो कहीं और. आप इस वर्कशॉप में, तभी इसका नाम हम लोग वर्कशॉप रखते हैं, तभी आपको ये पेड वर्कशॉप मिलती है ताकि आप मुझसे इंटरेक्शन कर सको. तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि सभी अपना कैमरास ऑन करके बैठो. जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है दे कैन स्किप, बट मेजॉरिटी ऑफ यू शुड कम अप, सिट एंड सेटल आइडली, और सुनो बस आराम से. आहा मजा आ रहा है. तो द फर्स्ट थिंग बच्चे, दैट इज अचीविंग मोर इन लेस टाइम. यस, आप लोग के पास जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी इकोनॉमी, इट कैन बी पॉलिटी, इट कैन बी जनरल साइंस, इट कैन बी और साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, सो मेनी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे हैं. ओवरवेल्म हो जाता है इंसान, बिकॉज समटाइम देयर इज योर सोसाइटी ऑल्सो, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, लेबर लॉज है जो कहीं नहीं आते हैं एक्चुअली में, राइट टू इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस, गवर्नेंस के आगे टॉपिक्स, पता नहीं ऐसे कितने सारे चीजें. ओवरवेल्म हो जाता है इंसान. द प्रॉब्लम इज कि सिलेबस तो हम कंप्लीट हो जाएगा, बट टू मैनेज इट is the most important task, especially those who are targeting your next year maybe, और 28, 29, 30 वालों को स्पेसिफिकली बता रही हूँ. आप लोगों को सेट ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम है मेरे पास, बहुत ज्यादा टाइम है, यही बैक ऑफ द माइंड चल रहा है. जिनके आपके 28, 29, 30 का टाइम देने वाले हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम है. अगर आप इस माइंडसेट से चलोगे तो आपका पेपर नहीं क्लियर होगा पहले अटेम्प्ट में. आपको हमेशा हमेशा क्या सोचना है, आपको सिंपली एक चीज सोचनी है, जस्ट वन थिंग. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? कि मेरा पेपर नेक्स्ट ईयर है, मुझे देना है, मैं प्रीलिम्स को बैठ के देखूंगा कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैंने कितना टारगेट किया है, और कट ऑफ कितनी चल रही है. और जो 2027 का देने वाले हैं, जैसे सिमरन है, किसी ने मेरे ख्याल से रमनीत है, शिव है, जो कि इन्होंने बोला कि मैम हमें नेक्स्ट ईयर देना है, तुम 2026 का बैठ के लिख के देखो, इसका प्रिंट आउट निकाल के कि तुमने कितना स्कोर किया. यूपीएससी की तो आप ऑफिशियल की भी सामने आ जाती है, बट फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें बताओ, तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही हो, तुम्हें बताओ. और ये तब होता है बच्चे जब आप अपने टाइम को क्रंच करोगे, जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करोगे, यू विल अचीव मोर इनटू द लेस टाइम. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल है बाकी सब्जेक्ट्स में से. हिस्ट्री और ज्योग्राफी. इकोनॉमी भी शॉर्टर हैंड पे है, पॉलिटी भी इतना नहीं है, पर हाँ 2-2 महीने इनको भी लग जाते हैं. ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं. अब कई लोग अपने दिमाग में पता है क्या लिख के बैठे होंगे, ये सबको एडवाइस है फ्री की. फ्री की तो नहीं है, चलो पैसे दे के आए हो बट इसको सुनना ध्यान से. तुम लोग ये सोच रहे हो 6 महीने ना हिस्ट्री को देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद कभी जरूरत ना पड़े उठाने की. इस माइंडसेट से मत चलना, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होते. आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 6 महीने में हिस्ट्री करनी है, मुझे दोबारा ना पढ़नी पड़े, मैं ज्योग्राफी इतना बढ़िया पढ़ूंगा कि मुझे दोबारा ना पढ़ने पड़े. यू आर नॉट हेयर टू डू द मास्टरी और पीएचडी करने नहीं आए हो.
तुम 2 महीने में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करने हैं। अगर तुम वो नहीं कर रहे तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। इन फैक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया ना बच्चे, उसका सिंपली मतलब पता है क्या होगा? कि तुमने रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज किया। जब एक चीज को एक्सेसिव इंपॉर्टेंस मिलती है तुम्हारी लाइफ में, तो दूसरी और तीसरी सफर होगी। इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना। when you will over emphasize your one part of your life, the second and third one will get compromised। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी हेल्थ खराब होगी। आप बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा सिटिंग आवर्स है, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगी, आपके रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपकी फैमिली सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी। ट्रू, राइट? पर उसके बिना पता इंसान नहीं चल सकता। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाए, उसके लिए यूपीएससी कुछ नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। आपको पढ़ाई के साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, और इसका बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आपकी एज ग्रुप में अभी क्या होता है कि यार सहेली बनाते हैं, सहेला बनाते हैं, यार बड़ा मजा आएगा, यही तो जिंदगी है करने की। मैं इस चीज को एग्री करती हूँ, चलो करो, पर देयर शुड बी अ बैलेंस। तुम्हारा एक अच्छा रिलेशनशिप हो, तुम्हारा हेल्दी रिलेशनशिप हो, वो रिलेशनशिप ऐसा हो जो तुम्हें मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। यार तेरा टाइम हो गया, तू भाग जाए यहाँ से, ना कि वो बोले कि तू तो मुझे टाइम नहीं देता, चल। फिर तुम उसको बोलो चलो मैं तो जा रहा हूँ, बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। तुम्हें राइट रिलेशनशिप रखने हैं। तुम्हारे सारे सफेयर्स को 1 2 3 4 डिवाइडेड इनटू योर 4 पार्ट्स, और इन सबको बैलेंस बनाओ। स्लीप, स्टडी, योर हेल्थ एंड योर फैमिली, ये चारों का बैलेंस ही यूपीएससी है। आपको जब 2 महीने में, सपोज करो आप एक कंटेंट को 6 महीने पढ़ रहे हो, एंड इमेजिन योर सेल्फ आप 6 महीने में पूरा जीएस पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके पास 3 साल है, आप 3 साल बार बार चीजों को रिवाइज कर रहे हो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है? 101%। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, कि हिस्ट्री में जो मुगल हैं वो हिंदू कुश से आए, फिर ज्योग्राफी में जाकर पढ़ोगे, ओह अच्छा पमीर नोट का एक पार्ट हिंदू कुश है जहां से आए थे। फिर अच्छा इकोनॉमिक पे पढ़ोगे, अच्छा ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी ऐसी थी, वो हमारा ले गए थे। फिर इकोनॉमी पढ़ोगे तो रिलेट करोगे। देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन एवरी योर सब्जेक्ट। हिस्ट्री ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी पॉलिटी से, पॉलिटी इकोनॉमी से, इकोनॉमी एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक से। सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, और वो तब समझ में आएगा जब आप रिपीट पे चलोगे, चीजों को लेके रेपिटेशन पे चलोगे। सो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जो 2027, 28, 29, 30 का कर रहे हैं, टारगेट ये लेके चलो कि मैक्सिमम टाइम जीएस पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि परफेक्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि समझ भी आ रहा है और आगे चलते हैं। डोंट थिंक कि मुझे यार याद तो हो नहीं रहा, बिना याद किए कैसे बनेगा। याद अपने आप चीजें होंगी जब तुम 20 बार 25 बारी एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे। द मंत्रा फॉर द यूपीएससी is very simple. That is to read it again and again. To try to connect and try to understand the points. Don't try to master. There is a difference between force and to get aligned. फोर्स का मतलब क्या बच्चों? जब तुम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो कि मैं अच्छे से पढ़ लूं। टू गेट ए लाइन का मतलब क्या है? कि चल यार जितना पढ़ रही हूँ वो तो सही चल रहा है ना, मैंने पढ़ लिया ना एक बार जीएस, मुझे ये तो पता है ना कि यार उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या चीज है। इस फीलिंग को लेना ही, सेटिस्फेक्शन को लेना ही अपने आप में बहुत सफिशिएंट होता, बस यही लेनी है।
और किसी कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई है जिसको रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, या बुक से प्यार नहीं है? जेन्युइनली बताना। हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हो या कुछ, पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बुक्स ना पसंद हो। कोई ऐसा तो नहीं है? शर्मा तो नहीं रहा कोई कि यार बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं और बुक्स नहीं पसंद? यूपीएससी की तैयारी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, अपने आप प्यार हो जाता है बुक्स से। यूपीएससी की स्टडीज आर सो इंटरेस्टिंग, सो मेक यू इंक्यूजिटिव, कि आपका मन करता है और पढ़े यार, और पढ़े और पढ़े। फिर रोकना पड़ता है कि यार दिस इज द लिमिट, इससे आगे नहीं पढ़ना। यूपीएससी में जो चीजें पढ़ते हो पूरी लाइफ काम आती है, थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगी वो आपको। वो इतनी अच्छी होती है कि यार राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या चीज है यार। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में ना, जब मैंने पढ़ाया था, वो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे लिया था, तो मैंने बताया था बच्चों को कि एक लेडी थी, उसका कुआं चोरी हो गया था। उसका कुआं, हाँ, वेल, जिसमें से पानी पीते हैं, कहते वो चोरी हो गया था उसका। उसने पैसा कैसे वापस लेके आई? राइट टू इन्फॉर्मेशन से। कहती ये देखो मेरा यहाँ पे कुआं, यहाँ पे सरकारी आपके कागजों के हिसाब से हमारा ये कुआं यहाँ पे होना चाहिए, पर ये नहीं है यहाँ पे। फिर कहती मेरी एफआईआर लॉन्च करो। पीडब्ल्यू वालों को फोन किया, तुम तो नहीं बचोगे अब, और उन्होंने रातों रात कुआं खोद दिया उसको। दिस इज द पावर, यू एक्चुअली लर्न दोज थिंग्स प्रैक्टिकली, कैसे चलती हैं, क्यों होता है यार, सरकारी काम कैसे चलते हैं। आपको इन चीजों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, आप अपनी डे टू लाइफ के बीच में बहुत ज्यादा अप हो जाते हो। यू नो, अच्छा, हु इज योर आइडियल? सबका आइडियल कौन है? कौन, कोई किसी ना किसी का होगा, किसी का विराट कोहली हो सकता है, तो आप सबका आइडियल कौन है? एनीवन, एनी एग्जांपल? विराट कोहली, किसी का और कोई? विराट कोहली, ठीक है। और कोई? इलॉन मस्क, सचिन तेंदुलकर। आपको पता है सचिन, सचिन जी की स्टोरी क्या है? सचिन वॉज ट्रेन्ड अंदर, कि कौन थे उनके ट्रेनर, कौन थे? रामाकांत सर थे, और उनके अंदर गवास्कर जी और सचिन तेंदुलकर दोनों ही ट्रेन किए गए हैं। सचिन और गवास्कर, गवास्कर इज अ, मतलब कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बहुत जबरदस्त प्लेयर है वो भी। पर मेरे ख्याल से नाम नहीं सुना होगा, पर सचिन तेंदुलकर का नाम सबने सुना। why he becomes your ideal? why Elon Musk is your favorite? अगर आप एलॉन मस्क की स्टोरी सुनोगे ना, कहते अगर लाइफ में कुछ करना है तो एलॉन मस्क की बुक पढ़ लो। why विराट कोहली? because they have managed to do the crunching of their time. इन सब ने एक चीज की है, दैट इज क्रंचिंग ऑफ योर टाइम। टाइम को मैनेज करना सीखा है, कि आपकी बहुत सारी चीजें करना इन द लिटिल टाइम। आपको भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। आई एम सेइंग, आई एम लाइंग इफ आई एम सेइंग कि इसमें बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू रीड, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत और ओवरवेलमिंग सिलेबस है यूपीएससी का, बट यू हैव टू रीड देम एन नंबर ऑफ टाइम्स। अपने आप फिर एक सिमेट्री बन जाती है इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल। आप एक सब्जेक्ट ट्राई कर लेना, कभी 15 दिन में पढ़ना, और सेम बुक आप 2 दिन में कोशिश करना पढ़ने की। देयर इज अ वन बुक, yes, fortunately I have this book that is your 80% mindset and 20% skills. I'm using the webcam, इसलिए opposite आ रहा होगा। ये देव गादवी जी की आपकी बुक है, 80% mindset and 20% skill।
इस बुक में पता क्या लिखा है स्टार्टिंग में? कहते ये बुक ना हाफ्स में मत पढ़ना, इस बुक को कहते हैं विद इन 2 days और 3 days यू हैव टू कंप्लीट। अगर आप इसका एक क्रक्स कहते लेना चाहते हो। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल। जब आप शॉर्टर टाइम के अंदर बहुत सिलेबस कवर अप करते हो, दैट इज अ मंत्रा। बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करो इन द मिनिमस्ट टाइम, मिनिमल आपका टाइम के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। और अगर आप जितने भी बार रिवीजन करोगे, आई एम गारंटिंग यू आपका यूपीएससी नहीं रुकेगा। सी, अगर आप में से कोई मुझे नहीं जानता या आप मुझे पहली बार सुनने के लिए आए हो यहाँ पे, माय नेम इज पैमल प्रीत। आई एम द फाउंडर ऑफ लर्न बाय मैप्स and co-director in your Simran IAS Academy. I am teaching more than 1 decade to the UPSC aspirants. And what I felt is कि जिन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उन सब ने 100% सक्सेस अचीव की है। सक्सेस डजंट मीन कि आप यूपीएससी के अंदर हो। सक्सेस मीन्स कि आपने इन चीजों को समझा, और अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप इससे भी बियॉन्ड कुछ करते हो लाइफ में। हाउ टू क्रंच योर टाइम, प्लीज राइट डाउन। आपको क्या लगता है कि हाउ टू क्रंच योर टाइम कैसे करना, कैसे? अब मैंने ये तो बता दिया क्रंच योर टाइम, बट हाउ टू डू इट? एनीवन? आप अपनी चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो क्रंच कैसे करना है टाइम को। यूपीएससी के लिए बता दिया है ओवरऑल, बट जस्ट टेल मी। आई एम कमिंग इन 2 minutes। पानी लेके आप सोचो इतनी देर हाउ टू क्रंच टाइम। एवरीवन जल्दी क्या लिखा फिर आप लोगों ने चैट सेक्शन में, देखें। there is a science, there is a specific science behind it, that is how to crunch time। हर कोई तुम्हारा आइडियल यही कर रहा है, तुम्हारा यूपीएससी टॉपर्स जो भी हैं आज तक जो निकले हैं। एंड लेट मी शो यू वन पिक्चर एज वेल। आई एम सॉरी अगर कुछ मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स निकल जाएं, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं से कुछ दिखाऊंगी, पर आई हैव सम। यस, ये पता क्या है? 5 months of struggle। Actually it's not 5, it's 2.5। this is not the complete picture, it is 2.5 months की struggle है, and hard work is no substitute। I have written a lot after your prelims in order to perform well in GS। giving up was never an option। he is Mr. कनिष्क कटारिया। कनिष्क कटारिया जी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी लगाई थी। मई में एग्जाम है, टुडे इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान से सुनना, अब जितने भी लोग हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। अभी आप जिस मंथ से भी स्टार्ट कर रहे हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5, और मे भी आप जनवरी का हाफ मंथ ले सकते हो before your notification gets out, to cover your GS solely, completely, कि मेरा GS भी अच्छे से हो और मेरा ऑप्शनल के साथ कंप्लीट हो चीजें। आपको ये सोचना पड़ेगा
please write down. That is the January, August, September, October, November, December. इन महीनों में आप लोगों को बच्चे मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और प्लस ऑप्शनल. ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी अपना ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं किया है? जिनकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है ना, सुमित, वो मेरे पीसीएस मेंस के स्टूडेंट है. वो ऑलरेडी यूपीएससी मेंस भी लिख के आए हैं. इस बार अनफॉर्चुनेटली उनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो पाया कुछ नंबर्स के कारण, बट उन्होंने इस बार अपना ऑप्शनल ही चेंज कर दिया. हिज ऑप्शनल वाज पंजाबी लिटरेचर, इस बार वो सोशियोलॉजी रख रहे. ऐसा मत करना. एक बार ऑप्शनल चूज करना और उसके बाद भगवान भी आ जाए तो तुम्हारा ऑप्शनल ना हिले, ऐसा ऑप्शनल रखना. आप सब बहुत न्यू और बिगनर्स हो. ये पहली और मैं लास्ट टाइम आप लोगों को एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ, नेवर चेंज योर ऑप्शनल. इस माइंडसेट के साथ ऑप्शनल चूज करना. अब यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने पहले कभी अटेम्प्ट दिया हो या कुछ. अगर कभी किसी ने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है, देखो, देन द स्टोरीज विल बी वेरी डिफरेंट. आपने दिया हुआ है, टॉपर्स के 300 प्लस आराम से आते हैं ऑप्शनल में, और आपके 200, 220, 250 जा रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर ऑप्शनल. बट नेवर चेंज योर ऑप्शनल जस्ट सेक ऑफ कि किसी ने बोल दिया, या मुझे गट फीलिंग नहीं आ रही, या मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ. ऐसा ऑप्शनल ना पहले चूज करना. 100% अपनी गट फीलिंग के साथ चूज करके चलना, और वो कभी ना हिले. उस हिसाब से चलना कि तुमने उसके बाद अगर ऑप्शन चेंज करने की कोशिश की तो इट कैन बी डिजास्ट्रस. ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता है. तुम्हारी एक सेगमेंट की मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि ऑप्शनल का चीज है ना, हम लोग ना जीएस में मेंशन नहीं कर सकते और ना वो पूछी जाती है. तो ऑप्शनल बहुत केयरफुली चूज करना, और जनवरी तक कोशिश करो कि तुम्हारे ऑप्शनल कवर अप हो. एंड आफ्टर योर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, फाइनली 23rd of August, योर मई को तुम्हारा प्रीलिम्स है. मेक श्योर कि उस टाइम पे तुम्हारी एग्रेसिव तैयारी हो. जो तुम लोगों ने आपका अभी अगस्त से लेकर जनवरी तक चीजें पढ़ी होंगी या दिसंबर तक, अब वो टाइम आएगा जब तुम उनकी रिवीजन करोगे. नाउ दिस विल बी टाइम जहां पे तुमने, ठीक है, अभी तुमने 2-2 महीने दिए होंगे शायद तुम्हारे हिस्ट्री को. मे बी नेक्स्ट टाइम जब तुम पढ़ रहे हो तो 15 डेज के अंदर तुम्हारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी. मे भी तुम्हारा इसके बाद जब तुम रिवीजन करो 10 डेज, 7 डेज, इवन 3 डेज, 1 डे एंड 1 आवर में कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है. दिस शुड बी योर फ्रीक्वेंसी. और ये करना है अगर पेपर क्लियर करना और टॉप रैंकर बनना. और ये एबिलिटी ऐसे नहीं है कि रातों रात आएगी, ये आएगी, विद टाइम आएगी, बट यू हैव टू क्रिएट दिस. आपको 100 लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, यार तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं है, तू स्टेट टॉपर नहीं है, तू मेडलिस्ट नहीं है. बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जितने आज तक बने हैं उन सबको कुछ ना कुछ सीखने सुनने के लिए मिला ऐसा कि यार तू नहीं कर सकता, कि रमनीत तू नहीं कर सकती, कि शिव तू नहीं कर सकता, सिमरन तू नहीं कर सकती. बट इससे बियॉन्ड जाना तुम लोग. यू हैव टू थिकन योर स्किन. मोटी चमड़ी के इंसान बनो. बोल दिया ढीठ है, सुनते ही नहीं, ये तो सुनाई नहीं देता. गुरु पिक्चर देखी किसी ने? गुरु पिक्चर नहीं देखी? ऐश्वर्या राय, गुरु, अभिषेक बच्चन की जो मूवी है, दैट्स अ फैंटास्टिक मूवी. धीरू अंबानी के ऊपर है.
तो धीरूभाई अंबानी को कभी कोई ना बोलता था ना, वो बोलते थे हैं क्या क्या, सुनाई ही नहीं दे रहा भाई। मोटी चमड़ी के इंसान हो जो, जस्ट थिकन योर स्किन, बी इम्यून टू दोज थिंग्स, सुनो ही मत। that's the biggest thing that you can do। सुनना ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता जो तुम बोल रहे हो। और जिस दिन तुम इस चीज में इम्यून होगे और तुमने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की, देन यू विल बी द मास्टर। हम लोग, हमारे प्रीलिम्स 5x एक प्रोग्राम है हम लोगों का, लास्ट ईयर भी चलाया था हम लोगों ने। वो जनवरी में स्टार्ट होता है हम लोगों का प्रोग्राम, जिसमें हमने बच्चों को क्लास में फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, हम लोग पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिसने लास्ट ईयर 5x प्रोग्राम चलाया। दैट मीन्स हम लोगों ने क्लास में उन महीनों में हमने 5 बार बच्चों की रिवीजन कराई क्लास में, हफ्ते में, फिर 5 दिन में, फिर 4 दिन में, 3 दिन में और 1 दिन। अभी 1 दिन की रिवीजन कैसे होती है मैम? क्रॉस क्वेश्चनिंग, मैं पूछ रही हूँ, आई एम फायरिंग, यू आर रिप्लाइंग, और जो नहीं आता, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे समझा के आगे। दिस इज द एक्चुअली द टेंडेंसी दैट यू शुड मेंटेन विद इन यू। यार इस तरीके से चलना। हमारे एलिवेट प्रोग्राम है, वेलोसिटी प्रोग्राम है, एपिक्स प्रोग्राम है, जिनमें आप लोग एनरोल होते हो, जो कि आपकी कंप्लीट कोचिंग है। उसमें आप लोगों को एक असिस्टेंट दी जाती है कि हम लोग 12 से लेकर 15 महीने में आपका पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। वी नीड टाइम, हमें भी समय चाहिए, 12 महीने 15 महीने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। करवा के मेरी एक सिमरन बिरदी करके एक लड़की है जो कि आपका पीसीएस मेंस लिख के आई है। अब नेक्स्ट ईयर शी इज एक्सपेक्टिंग कि मैम मैंने यूपीएससी मेंस पहले भी लिख के, इस बार दिया ही नहीं था उसने, शी विल बी राइटिंग। वो 2020 की कॉम्प्रिहेंसिव का स्टूडेंट है मेरा। असूलन उसकी चीजें खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि हम 3 साल की वैलिडिटी देते हैं, बट ऐसा नहीं है हमारे केस में। हमें जब लगता है कि बच्चा ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, बच्चा कर रहा है, तो उसको आज भी उसको लाइव सेशंस, उसको मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग की सपोर्ट सब कुछ मिलती है, बिकॉज यूपीएससी को क्लियर करने के लिए टाइम चाहिए एंड वी अंडरस्टैंड दैट वे। तो अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हो जिन्होंने ली है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल बाद पूछेंगे नहीं, हम यहीं पे 2009 से एकेडमी चला रहे हैं, 17-18 साल हो चुके हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एकेडमी इन चंडीगढ़ आफ्टर अभिमन्यूज, वी आर द ओल्डेस्ट वन एंड वी आर वर्किंग सिंस 2009। तो ये बहुत पुरानी एकेडमी, यहीं बैठे तुम्हें यहीं गाइड करने के लिए, और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा यहीं मिलूंगी तुम्हें, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। This is the passion that we have. We are not working here just for money. We are here कि कुछ नाम कमा के जाए। जैसे कल गए थे जब ना गवर्नर हाउस में, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि कहाँ आगे भगवान ने क्या अपॉर्चुनिटी दे दी कि गवर्नर हाउस से गवर्नर साहब से मिलने का मौका मिल रहा है, चाय पीने का मौका मिल रहा है। कहते सर, बोलते हैं संदीपन सर, कहते मैम चाय तो हर जगह की पी है हमने, पर गवर्नर हाउस की चाय तो जरूर पियो। एंड मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मैंने उस दिन कल पता नहीं कितने टाइम के बाद चीनी वाली चाय पी। मैंने कहा हाँ सही बात है सर, कि गवर्नर हाउस की चाय नहीं मिलती, हम जरूर पी के जाएंगे। सो ये वाइब्रेशन लेने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रणाम रतन कुमार जी। So the science, please write down the science and the 3 factors। सब कैमरा सबके ऑफ हो जाते हैं, क्या बात? जितेश, प्रतीक्षा है, फैजल, मलिक साहब, मनत, नेहा, अनीशा, रेनू, अंजू, मुस्कान, रतन, खुशी, सबका नाम ले रही हो, सभी अपने कैमरा ऑन करो। ठीक है, देयर इज अ साइंस, देयर आर 3 साइंस behind crunching your time. How to crunch your time, please write down। उसका शॉर्टकट है MGM। How to crunch your time का शॉर्टकट है बच्चे MGM। आप लोग करोगे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है,
कि आप लोगों ने कैमरा ऑन किया, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कहने पे किया है। सभी कैमरा ऑन करके ध्यान से सुनो, मुझे पता लगता है कि क्या क्या वाइब्रेशन पे चल रहे हो तुम। तो MGM, द फर्स्ट इज measure, the second is grow, and third is maintain it. Measure, grow and maintain. आपने कितनी बुक्स पढ़ी आज तक यूपीएससी के लिए? टेल मी, हाउ मेनी बुक्स यू हैव रीड टिल नाउ? अच्छा, आज तक सिंस योर चाइल्डहुड आज तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी है? कभी पढ़ा उसको, मेजर किए? हाउ मेनी बुक्स यूपीएससी के लिए? आप डेली में कितने रीड करते हो? पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस? Please take that question very seriously. Take that question very seriously. How many questions, how many pages or books do you read in one day? Do you measure it? You need to measure it. अगर आप measure नहीं ना कर रहे, तो आपको क्या पता क्रंच हो भी रहा है टाइम की नहीं हो रहा? आपको करना पड़ेगा। देखो कि आज मैंने 20 पढ़े, कल मैं 30 पढ़ूंगा, फिर मैं 40 पढ़ूंगा, मैं 50 पढ़ूंगा, मैं 100 पढ़ूंगा, और धीरे धीरे तुम्हें 500 पेजेस तक भी पहुंचना है। तो मेजर, देन इज योर ग्रो। दिस इज ग्रोइंग। आज कितना पढ़ रहे हो, कल कितना पढ़ रहे हो? जब नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कितना टाइम लगता है? मैं कितने को पढ़ पाता हूँ? मैं कोई सब्जेक्ट है ना, तो मैं उसे टाइम पता लग जाएगा कि मुझे उसको टाइम लग रहा है, तो दैट इज समथिंग कि इसको यार टाइम लग रहा है इम्बाइब होने के लिए। मे बी इकोनॉमिक्स कैन बी द वन जहां पे आपकी रीडिंग स्लो हो जाएगी, बट वो तभी पता लगेगा बच्चों जब आप उसको मेजर कर रहे हो। देन यू विल ग्रो इट, कि धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें। एंड द थर्ड वन, दैट इज टू मेंटेन इट। अब ऐसा ना हो जब आप तीसरी बार पढ़ रहे हो हिस्ट्री को, तो पहली बार तो 2 महीने लगे, तीसरी बार 6 महीने लग रहे हो। यू हैव टू मेंटेन द पेस। वो ग्रेजुअली कम होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं दैट इज योर प्लैटिनम स्टैंडर्ड्स और मे बी द स्टैंडर्ड्स। कहते बुर्ज खलीफा में ना, you know, Burj Khalifa, what is the speciality of Burj Khalifa? It is Burj Khalifa, Dubai. क्या खासियत है उसकी? Tallest building. Yes, it is the tallest building of the world. तो उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। मुझे बताओ बुर्ज खलीफा में ऐसी क्या चीज है एक्चुअली जो जनरली बिल्डिंग में होती है बट बुर्ज खलीफा में नहीं है? Windows. Yes, they don't have windows. They don't have any windows, guys. अगर वो विंडोज बनाएंगे, हवा आएगी, बस खत्म बिल्डिंग। आपको एक ना स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अब वो स्टैंडर्ड क्या होंगे बच्चे? रीडिंग सर्टन योर पेजेस, आपने कितनी बुक्स पढ़नी है, और सिर्फ उसको बुक्स पढ़नी है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं उसको याद कर पा रहा हूँ कि नहीं, नहीं करना, याद नहीं करना। तो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, आज बता रही हूँ, यूपीएससी प्रिपरेशन में कुछ भी याद करने वाला नहीं है कि याद, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब तुम बार बार पढ़ते हो, जब स्टोरीज को पढ़ते हो। तो यू हैव टू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ रिविजन एंड तुम्हारी बाकी सारी चीजें इजिली हो जाएंगी। और हेल्थ सही रखनी है। कोई पर्सन अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आई हैव सीन पीपल क्रैकिंग इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट 1 year, just 1 year, and they have compromised with their health. पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हेल्थ पे कंसंट्रेट कर लो, जिम लगाने लग जाओ मेरे कहने के ऊपर, और फिर पढ़ाई ना हो। बैलेंस, जस्ट अ बैलेंस, आइडियल बैलेंस, बढ़िया सा बैलेंस कि यार मैम ने बोला है कि करना है वो चीज, तो वो मेंटेन करो, हेल्थ भी मेंटेन करो और तुम्हारे स्टैंडर्ड भी अच्छे चले। तुम बुक्स भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी है। My husband himself has started preparing
from your July 2015, and he was selected as a सब इंस्पेक्टर हैं वो अभी एट प्रेजेंट. बट एक साल में पेपर क्रैक करना ना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती. मेरी मदर इन लॉ का सिर्फ एक ना मिशन था कि मेरे बेटे की ना बस सिलेक्शन हो जाए किसी भी पेपर में. और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि मुझे अपनी माँ के लिए ना बस एक पेपर क्लियर करना. और उन्होंने उस पेपर को क्रैक किया लेस देन 1 ईयर. लेस देन 1 ईयर. क्यों? हमने सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करवाया, सब कुछ किया. अब तो वो एसडीएम का पेपर देने जा रहे हैं जो अब मतलब कि उनको 8 साल हो चुके हैं अब सर्विस के अंदर. अब तो वो इंटर जो हमारे प्रमोशनल आपके एग्जाम्स होते हैं ना उसके लिए एलिजिबल है. बहुत पुरानी होगी उनकी जॉब. बट स्टिल थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस के लिए. बट बहुत पुरानी जॉब होगी उनकी. पर आप इस चीज को समझो कि उनकी, पता है मैं आपको एक रियल एक चीज बताती हूँ. ही स्टिल हैज अ प्रॉब्लम इन हिज टेल बोन. उनको कई बार ना उनकी सिटिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि उनके ना आपके टेल बोन के अंदर उनको प्रॉब्लम आ गई. इन हेयर्स ग्रो होने लग पड़ते हैं मेल्स के. तो आपका चलना बहुत जरूरी है. आपको ऐसा नहीं है कि बैठे रहो. तभी मैं बोल रही हूँ कि देयर शुड बी अ बैलेंस. उन्होंने एक साल में क्रैक किया तो उनकी थोड़ी सी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई है. तुमने नहीं करनी. तुम लोगों ने हेल्थ भी मेंटेन करनी है, तुमने स्टडी भी मेंटेन करनी है. और उनकी सिटिंग कैपेसिटी मैं बता दूं, ही यूज्ड टू सिट 12 आवर्स. एक साल में जो सोच रहे हैं ना एक साल में फोड़ने की, वो ऐसी ही चाहिए होती है फिर. सिटिंग. और अब उन्होंने 10 साल पहले किया था. कंपटीशन और हाई है आज की डेट में. यूपीएससी को क्रैक करने के लिए वैसे भी अब 2 साल चाहिए. देखो जो आपके अलाइड एग्जाम्स होते हैं वो 1 स्टेज एग्जाम होता है. जो यूपीएससी है उसके बेचारे का 1 साल का तो प्रोसेस ही होता है. 1 साल में सिलेबस कर रहे हो, मेन स्टार्ट होगा, फिर नहीं प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा. 1 साल तो सिर्फ आपके पूरे एग्जाम का प्रोसेस हो जाता है. तो try to learn this point how to sit for the longer hours. If you don't have any, try to maintain that. अभी बहुत सारे जिनका कैमरास ऑफ है ना, वो हो सकता है कि इधर उधर चल रहे हैं मेजोरिटी ऑफ यू. तभी कोई बच्चे के पीछे भाग रहा होगा, कभी इधर भाग रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई गाड़ी में चल रहा होगा, है ना. तभी कैमरा ऑन नहीं हो रहे. द मेन थिंग, देखो तभी मैंने बोला कि बोलते सभी हैं पर तक करते ही क्या हो ना वो डिपेंड करता है. हेल्थ को अच्छा रखना. नेहा कहती हाँ मैम. बच्चों के पीछे भाग रहे हैं नेहा. कोई बात. हेल्थ को मेंटेन करना, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना, अपने स्टडीज को टाइम देना, अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए सिंपल एक फैक्टर है, दैट इज 8 आवर ऑफ योर स्टडीज, 8 आवर्स ऑफ योर स्लीप एंड 8 आवर्स टू द अदर योर थिंग्स. अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम 8 आवर्स ऑफ योर स्टडी के अंदर हम लोग नंबर ऑफ पेजेस कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे. आपने ग्रो करने के लिए बोला है. देखो 1 घंटे में तुम्हें देखना पड़ेगा तुम कितने पेजेस पढ़ रहे हो. ये तुम्हें काउंटेबल बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेंटेन अ लॉग. तुम 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ पा रहे हो उसका लॉग बनाना शुरू करो. और ये ऐसे बहुत बोरिंग है, सबसे डिफिकल्ट है. यूपीएससी क्रैक करना भी इजी नहीं है, वो भी डिफिकल्ट है. ये भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कि आप घंटे में कितने पेजेस पढ़ पा रहे हो. आपने आज तक अपनी बेसिक एजुकेशन, दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इज द फेज इज योर सेकंड. इसके बारे में तुम्हें बता दिया, ये सब चीजें हैं. करंट अफेयर्स पढ़ना, ये सब कुछ करना, इनके बारे में बात करेंगे. पर मुझे ये बताओ, द सिंपल इज थिंग इज, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन स्कूलिंग से लेकर आज तक कॉलेज कर रहे हो या कॉलेज कंप्लीट कर लोगे, उसमें टोटल अमाउंट आप लोगों ने कितना स्पेंड किया है आपके मम्मी पापा ने. हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट दे हैड डिड इन यू, योर स्कूलिंग, योर कॉलेज,
बताओ, किसी के 1000 में, किसी के lakhs में, किसी के crores में, बताओ. Never calculated, just have an idea, maybe a little idea. थोड़ा आइडिया तो सोचो तो सही, थोड़ा, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 50,00,000, 25,00,000. अच्छा, ग्रेजुएशन का ही बता दो. आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए. अगर आपने नहीं किया, 3 lakhs, गरिमा सेड 3 lakhs makes a sense, approximately 10 lakhs, yes, up to the graduation, right? तो सबका कुछ ना कुछ होगा ऐसे. लैक्स तो आराम से हुआ. अब मुझे ये बताओ कि किस तरीके के स्किल सेट दिए हैं तुम्हारे को तुम्हारे कॉलेज ने और स्कूल. लाइफ स्किल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्किल्स. राइट डाउन दैट इज योर लाइफ स्किल्स. कितने दिए हैं कॉलेज वालों ने, कितने दिए हैं स्कूल वालों ने लाइफ स्किल्स? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ स्किल? लाइफ स्किल is built by a life coach. Yes, Amber? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ नहीं ਲਈਦੇ? नहीं, ऐसे किसी के घर में नहीं होता. अब वो जमाने बहुत पुराने हो गए. बहुत पुराना हो गया वो जमाना. आई बिलीव जो अब जो जनरेशन आ रही है वो तो इसके बारे में बात भी नहीं कर रही है. और रियली ऐसा भी कुछ है इस दुनिया में? ये हमारी लास्ट जनरेशन है जो इसके बारे में बात कर रही है. एम्बर, परहैप्स तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम कभी इस चीज के बारे में बात नहीं करोगे. एंड मेजोरिटी यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आएंगी उन्होंने कभी इस चीज को फेस नहीं किया होगा. आई एम प्रिटी श्योर. इफ यू हैव डन इट, मेक श्योर दैट इट डजंट trickle down to your daughters. एंड सभी मेल्स के लिए भी है ये. सो कितने लाइफ स्किल्स दिए हैं, कितने लाइफ स्किल्स दिए हैं आपको? हैंड It can be Yes, रतन ने कितनी अच्छी बात बोली. I really love it. That is to the hand to the mouth survival. बस इतना ही देता है. लाइफ स्किल्स एक लाइफ कोच देता है. जैसे सचिन के मैंने बताया थे, दैट इज योर रामाकांत सर हैं. आपको पता है महात्मा गांधी जी के कोच कौन थे? महात्मा गांधी जी के भी कोच थे. एंड ही वॉज Gopal Krishna Gokhale. He was the coach of your M.K. Gandhi. अब सोचने की बात है कि गांधी जी तो इतने पॉपुलर हुए, उनका कोच नहीं हुआ. तुम भी ऐसे पॉपुलर हो गए और मुझे कोई नहीं जानेगा बट तुम्हें सब लोग जानेंगे तुम जब IAS बनोगे. ऐसे ही होता. बिल गेट्स के कोच कौन है आपको पता है? वॉरेन बफेट. You know who is the coach of you? जो तुम्हें लाइफ स्किल सिखाएगा. ये इनके टीचर्स नहीं है, स्कूल टीचर्स नहीं है, कॉलेज टीचर्स नहीं है. You need to choose your mentor. जो तुम्हें लाइफ स्किल सिखाए. लाइफ स्किल स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली. लाइफ स्किल्स मिलते हैं when you actually get graduated और maybe graduation के साथ जब आप कुछ करते हो. कॉलेज और स्कूल लाइफ्स में आपको सिर्फ आपकी एक बेसिक एजुकेशन और डिग्रीज चलती हैं, पेपर्स चलते हैं और ये सब कुछ. बट लाइफ skill is your motivation, storing telling abilities, how to talk, how to present yourself, how to dress up yourself, how to sit, how to stand. आज तुम्हें एक सिंपल एक चीज बताती हूँ. तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम्हारा एक दिन का लाइफ कोच हूं मैं. क्योंकि जब तुम सिमरन IAS अकेडमी ज्वाइन करते हो, यू आर नॉट जस्ट हेयर फॉर योर UPSC प्रिपरेशन, यू आर हेयर टू अपग्रेड योर लाइफ स्किल्स. एंड एक लाइफ स्किल दूंगी, ध्यान से सुनना. जितने भी मेरे स्टूडेंट, खुद मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बैठे हुए हैं, इस चीज को सुनना. जो मुझे पहली बार सुनने के लिए आए हैं, ध्यान से सुनना. वॉक like you are winning the world.
बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है जब वो चलते हैं ना, तो ऐसे वॉक like you are going to win the world. Stand on your both foot. Balance. कई बार हम एक लात पे बैठते हैं, देख रहे हो मुझे, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मुझे नीचे नहीं देख पा रहे, बट मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा एक बैलेंस मेरे एक पैर पे, एंड नाउ आई एम ऑन माई बोथ फुट. अब आप एड्रेस कर सकते हैं मेरी कॉन्फिडेंस. दिस इज हाउ यू ग्रो इन योर लाइफ. Walk like you are going, every step that you take, think that you are winning the world. और तभी तुम यूपीएससी क्रैक करते हो. जितने एस्पिरेंट्स, कल मैं गई थी राष्ट्रपति भवन, मतलब कि आई हैव सीन पीपल, दोज हु वर फैंटास्टिक, योर डिलीवरर्स, हाउ दे आर वर्किंग एक्सेलेंट. दे हैव योर एबिलिटी कि वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे थे. जिनके बहुत ब्रिलियंट आइडियाज थे, वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स, स्टोरी टेलर्स थे. और ये स्किल बच्चे हम लोगों का ना, अब दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक इट. सो चूज योर मेंटोर. इफ यू आर चूजिंग अस एज योर कोचेस, आई विल मेक श्योर हम लोग जीडीज करते हैं क्लास में. मुझे पता है कि कई लोगों ने अटेंड की है, कई लोगों के लिए अभी नहीं है ये, एंड मे बी इस हफ्ते में हम लोग हमारे फर्स्ट जीडी भी करेंगे. जैसे सिमरन ने की है, शिव ने की है, रमनीत ने की है. तो बहुत सारे आप लोग जो है अपनी जीडीज परफॉर्म करते हो हमारे साथ, जहाँ पे आपको बताते हैं कि लेडीज से कैसे बात करते हैं, एक मेल को कैसे फेस करते हैं. क्योंकि लेडीज के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? फीमेल को मेल को फेस करना. वो सब कुछ सिखाया जाता है. एंड द अल्टीमेट थिंग इज कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, जॉब क्विट कर देते हैं. इतना प्रेशर ही नहीं हैंडल होता, सुसाइड कर लेते हैं, लोग गोली मार जाते हैं, कितना कुछ होता है लोगों के साथ. अब वो चीजों को प्रेशराइज, अपने आप को ट्रेन करना आज से शुरू करेंगे हम लोग. when you will choose us as your mentor. Measure your benchmarks कि मैं कितने पेजेस पढ़ रहा हूँ. Grow it and be accountable. Maintain it कि कैसे मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कितनी स्पीड पे चलूँ, मैं 2 महीने बाद कितने स्पीड पे पहुंच जाऊँ, मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद. ये खुद अकाउंटेबल होना बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि आपने रशनीत कौर सुने हैं? रशनीत कौर हु इज योर अ गर्ल फ्रॉम योर राजपुरा, जिन्होंने आपका पेपर क्रैक किया इस बार यूपीएससी का. शी इज अ डॉटर ऑफ योर लाइनमैन. बहुत छोटी जॉब होती है बहुत, और उसकी डॉटर जो है फाइनली आईएएस बनी है, एंड शी इट वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट. तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स ना, मैं भटका नहीं रही, पर मैं सच में बता रही हूँ कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे बोलते हैं कि हमने खुद तैयारी की है. कल शी वॉज इन फ्रंट ऑफ हर टीचर्स, और उसने बोला कि मैंने बेसिक एजुकेशन की है फ्रॉम दिस अकेडमी. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टॉपर्स जो देखो, एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग वो नहीं दे सकते आपको. एक सिल्वर स्पून नहीं है हमारे पास कि डालेंगे तो उसमें आप आईएएस बन जाओगे. बट वी कैन टेल यू कि ऐसा स्पून बनाना कैसे है जिसको मुंह से डालने के लिए मुंह में डालोगे तो आईएएस बन जाओगे. दैट इज जस्ट अ वन डिफरेंस. हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है जो हम आपको दे और पी लो और आप आईएएस बन जाओगे. बट हम ये जरूर बता सकते हैं इस दवाई का प्रोसेस ऐसा है और वो बना के आप बन सकते हो. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, thank you so much, Ratna. I'm reading your chats. Amazing. कहते mother is the best mentor, definitely 101%. तो कई चीजें आपको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार वो रबड़ की तरह ना खिंच जाती है.
पर जब आप आउटसोर्स कर देते हो कोचिंग को, तो आपका मेंटोर, क्लास शेड्यूल, हाउ टू श्रिंक योर टाइम, तो आपको खुद करना पड़ेगा। कोचिंग बस ये करेगी, आपको एक बार के लिए करा के किनारे करेगी। मैंने बताया कि 5 बार हमने रिवीजन कराई है, बट उसको 15 बार करनी है, तो 10 बार तुम्हें फिर से अपने आप करनी पड़ेगी वो। आपका क्लास, आपकी शेड्यूल, आपका टॉपिक कवरेज हम लोग कराएंगे, बट इंटरेस्टिंगली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। टॉपिक्स कौन से हैं जो कवर करने हैं, वो भी नहीं पता लगता। इतना कुछ है यूट्यूब पे, कैसे पता लगेगा कितने टॉपिक्स हैं, कौन सा पढ़ना है मैडम? इतना कुछ पढ़ लिया, आज तक यही नहीं पता था कि लेबर लॉज भी पढ़ना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, राइट टू फॉरगेट पढ़ना है। राइट इतने ज्यादा है, लॉज इतने ज्यादा है। उस चीज में कई बार कोचिंग आप लोगों को बहुत हेल्प करती कि दीज आर योर थिंग्स, सो यू नीड टू आउटसोर्स दैट। अगर आपको ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन करनी है, go to at your own. If you want to save your time, you have to choose your mentors. एक फर्म माइंड, एक डेडिकेटेड हार्ट से आप पाओ। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अब मैं उस पर पहुंचती हूँ। बच्चे, सबसे पहली चीज, कभी भी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको रोज रोज सिलेबस पढ़ना है। आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा? आर यू रीडिंग योर सिलेबस? किसने आज तक सिलेबस कितनी बार पढ़ा? माय सिंपल क्वेश्चन, शिव कितनी बार पढ़ा? सच बताइए। सेवन टाइम्स। हम सबकी गर्दन ऐसी होती है क्लास में जब बैठे हैं, जितने कैमरास ऑन है ना, सबकी गर्दन ऐसे ऐसे रखो जरा सीधी। इतनी सी ना, बिल्कुल सीधे आपके दिमाग में ये बात जाएगी, गर्दन बिल्कुल सीधी। आपको सिलेबस रोज पढ़ना है। एवरी डे यू हैव टू रीड योर सिलेबस। प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तब, मेंस कर रहे हो तब, इंटरव्यू जा रहे हो तब, आपको रोज सिलेबस पढ़ना है। 7 दिन तो हुए नहीं हमें तैयारी करते हुए, बहुत दिन हो गए। और एक बार ही सिलेबस जरूर पढ़ो दिन में। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, अपने दिन में रोज 5 मिनट लगा के सिलेबस जरूर पढ़ो। And the second thing that you can do is that is your preparation, that is your NCRTs. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम एनसीईआरटीज कैसे करनी है। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज दिखाने लगी, बहुत अच्छी चीज दिखाने लगी हूँ। हाँ जी, एक टॉपर बनने के लिए हाउ मेनी, मतलब कि कितने मार्क्स का होता है हम लोगों के? एनीवन? दैट इज योर मीन्स कितने नंबर का होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? एनीवन? प्रीलिम्स तो हमें पता है, मेंस और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? एम्बर? This is a mark sheet, okay, 750 marks का, that is 1550 marks का हम लोगों का रहता है, that is your मेंस रहता है। अच्छा, इसमें से टॉपर्स के कितने नंबर आते हैं? मैम अराउंड 900,000, 1000, around 900 approx 1000. 900। और बाकी? हाँ जी, बाकी लोग? अगर कोई 90-80% वाला बच्चा बैठा है, उसने ये मत सोचना कि मेरे प्यारे बच्चों कि तुम्हारे यहाँ पे ना 80-90% आएंगे। दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा जो कट ऑफ है आपकी
60 या 65% जाती है। ये 2017 के अनुदीप दुर्शेट्टी जी हैं जिनका ये मार्कशीट मैंने यहाँ पे निकाले, देख रहे हो आप लोग 1126। ये 2023 के रैंकर हैं, दैट इज योर आदित्य श्रीवास्तवा। 2023 के टॉपर हैं, रैंक 1, दोनों रैंक 1 हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? 100 एंड 1099, 1100, और कितना डिफरेंस है यहाँ पे? दैट इज अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का, दैट इज योर यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे आपके 26 नंबर का फर्क है। पर अगर आप इनके मार्क्स ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से देखना, इनके मार्क्स को समझना, इंटेलिजेंट बच्चों ध्यान से इनको मार्क्स को देखना। इनके ऐसे में कितने आए हैं? 155। इनके कितने आए हैं? नॉट इवन 120, 30 नंबर पीछे हैं। चलो जी, 123, 123, 136 एंड एथिक्स में 95, और यहाँ पे 104, 132, 95 एंड एथिक्स में डिजास्टरली दैट इज योर 143। क्या इनमें सिमिलैरिटी है कुछ? इनके पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में इनको 200 मिले और दूसरी साइड पे 176। आर यू सीइंग द पैटर्न? कुछ फिक्स नहीं होता। अगर आपको रैंक लेके आना है, आपको हर एक एस्पेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज योर वर्क हार्ड करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट टेक आउट। Is everyone is able to see my screen? White screen दिख रही है? दिख रही है जी? Yes, ma'am. And then is your optional and your essay. Total marks कितने होते हैं जी यहाँ पे? जीएस टोटल नंबर कितने का होता है जी मेंस के अंदर? 1000। 250 मार्क्स के 4 पेपर्स होते हैं जी। 250 मार्क्स के 4 पेपर्स होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स टोटल दैट इज 1000। और ऑप्शनल कितने का होता है? 250 मार्क्स के 2 पेपर, तो दैट इज योर 500 मार्क्स का टोटल होता है जी ऑप्शनल। ऐसे कितना होता है जी? ऐसे 250। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो किस पे फोकस करते हैं? सिर्फ यहाँ पे, या यहाँ पे भी थोड़ी सी एनर्जी डाल देते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं डालते। ये मतलब कि सेग्रीगेशन होती है। बट जब तुम नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करते हो ना, अगर सपोज करो दिन के अंदर तुम लोगों के पास 7 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे बच्चे जीएस पढ़ना है, 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है, और 1 घंटा एसे पढ़ना है। दिस शुड बी योर रेशियो। पर ऐसे तब पढ़ना शुरू करना जब एक बारी जीएस पूरा हो जाएगा। बट दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड योर टाइम। जीएस को 1000 नंबर्स हैं जी, ऑप्शनल में 500 और एसे में 250। तो किसी भी एक पार्ट ऑफ द सिलेबस के अंदर सोच, आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं यार ऐसा है कि मुझे तो तैयारी अच्छे से करनी है। Just a minute. कोई ये नहीं सोचेगा कि लेट इट बी यार, मैंने ऑप्शनल नहीं पढ़ना, मैंने ऐसे नहीं पढ़ना। ये रेशियो है जो तुम्हें डिवाइड करनी पड़ेगी कि तुम जितनी एनर्जी डाल रहे हो अपनी, तो तुम्हारे इस हिसाब से चलना चाहिए। तुम जीएस को भी टाइम दे रहे हो, ऑप्शनल को भी दे रहे हो, और थोड़ा सा एसे को भी दे रहे हो। एसे को पर तब दे सकते हो जब आपका बिल्कुल
आपका जीएस एक बारी कंप्लीट हो चुका है, एक बारी पढ़ चुके हो आप एक बार। आपको एक भी ऐसा नहीं रखना कि अच्छा यार नहीं मैंने तो सिर्फ जी, पर हाँ थोड़ा जीएस के ऊपर इसलिए भी फोकस करना जरूरी होता है एक आध घंटा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें वो प्रीलिम्स में भी पढ़ना है। और इसके अंदर जब तक आपका ऐसे नहीं स्टार्ट होता तब तक आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज विद योर सी सैट। और सी सैट को बच्चे बोलते हैं कि मैम जनवरी से पढ़ना शुरू करें। सी सैट इतना मुश्किल आ रहा है आज की डेट में, इफ यू आर नॉट रीडिंग योर थिंग्स फ्रॉम द बेस टू द हाईएस्ट लेवल, तब तक आप बच्चे ऐसे आपका जो सी सैट है वो क्लियर ही नहीं कर पाओगे। आपका सी सैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। उसकी वजह से आपका प्रीलिम्स की जो जीएस है ना वो तभी क्लियर होता है जब आपका सी सैट अच्छा है। अगर आपका सी सैट अच्छा नहीं है आपका प्रीलिम्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है जरूर है, बट वो क्वालिफाई करना आज की डेट में बहुत ज्यादा मुसीबत हो चुकी है। तो हर चीज को टाइम दो, अच्छे से टाइम दो। अब मुझे सिंपल एक आप लोगों को एक चार्ट बनाना सिखा रही हूँ, सिंपल एक चार्ट बनाना सिखा रही हूँ जो अगेन आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। प्लीज टेक आउट द चार्ट अगेन, योर ब्लैंक पेज। ओके, just a minute, I'm not able to use it. ओके, ऐसा एक चार्ट बना लें। यहां पे लिखेंगे थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, important but not urgent, that is not important but urgent, that is neither your important nor urgent। ये चार्ट को हमेशा याद रखना जी, सभी सभी के लिए है, ये सभी के लिए। ये चार्ट बनाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके भाई बहन है कुछ है उनको भी ये सिखाओ। अब मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में ऐसे कौन से टास्क हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है? ये सबने करना है, सबने। इफ यू वांट टू क्लियर योर यूपीएससी, आप लोगों ने सबने मुझे ये डिपॉजिट करना है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट है ना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बट हम करते हैं, बट वी डू इट। हाँ जी, कौन सी चीज है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सोचो ऐसी कौन सी, और दिमाग लगाओ अपना। जो इम्पोर्टेंट है वो बाद में करेंगे, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है जो अर्जेंट भी नहीं है बट फिर भी हम करते हैं, व्हाट आर दोस थिंग्स? मम्मी पड़ोसी के घर में नई कार आई है, मम्मा नानी को ये बताना है नए सूट आए हैं। अरे वो ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। गॉसिप्स, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स, द मोस्ट डिजास्टर थिंग you are doing to your life. Chatting on the phone, that is not even important, not even urgent। इसका एक कैटेगरी बना लो, इसकी एक
इसकी लिस्ट बनाओ, इसकी आज ही बैठ के जस्ट आफ्टर दिस क्लास प्लीज मेक द लिस्ट। देख मैंने पहले ही बोला कि इस क्लास में कुछ तुम्हें ऐसा बताऊंगी जो तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट है, जो करने से बहुत कुछ होगा, बट द प्रॉब्लम इज जिसने करना है ना, जिसने पेपर क्लियर करना है, सिर्फ वही बनाएगा इस लिस्ट को। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। ब्रेनस्टॉर्म, सोचो। राइट डाउन। द फर्स्ट थिंग इज योर सोना। स्लीप के बिना बहुत मुश्किल है। द सेकेंड थिंग इज योर स्पोर्ट्स। शायद इंपॉर्टेंट है पर ऐसा नहीं है कि अब भी करना ही है। द वन इज पैमल मैम के लेक्चर, यूपीएससी का सत्संग। अर्जेंट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है, या कहीं से मोटिवेशन लेना यूपीएससी के लिए वो बहुत जरूरी है। अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है। मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना अर्जेंट तो नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इफ यू आर मिसिंग दीज थिंग्स आउट, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इसकी चीजों की लिस्ट आप लोगों ने अपने हिसाब से भी बनानी है। हाथ जोड़ के बस इतनी प्रार्थना है कि ये कर लेना आज, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम लाइफ में जा कर रहे हो। अब टेल मी द थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल दे आर वेरी अर्जेंट। इसमें से मुझे जब सबसे पहले मेरे मेंटोर ने मुझे ये बोला था ना, अंकुर जो आपके सर हैं, उनसे ये सीख के आई थी मैं, तो मुझे सबसे पहले नेचर कॉल्स याद आ रही थी। इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट है। है ना, होता है ना, तो अर्जेंट तो है भाई। प्यास लग रही है, कुछ है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है। और सोचो क्या चीजें होंगी ऐसी। ये सबसे यूजलेस कैटेगरी में से ऐसी चीजें सामने आती है, कपड़े धोना। एट द एंड ऑफ द टाइम जब तुम्हारी सिलेक्शन होएगी तो तुम्हें कोई पूछेगा कि तुमने कितने कपड़े धो के अपने किए थे, नहीं ना। सो काउंटिंग दैट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितने कपड़े धोए, पर लॉन्ड्री करनी जरूरी है। चीजों को डेफिनेटली ऑर्गेनाइज रखना, अपनी आसपास की चीजों को, सराउंडिंग्स को देखो, इज इट क्लीन राइट नाउ। अपने आगे पीछे देखो, आपकी चीजें कितनी सिमेट्री में पड़ी हैं आपके रूम में। ये अर्जेंट बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, पर डेफिनेटली दैट नीड्स अटेंशन करना जरूरी है। अब वो चीजें बताओ जो लाइफ में इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। दिस इज योर द मेजर थिंग जो होनी चाहिए। अब मुझे इसमें बताओ क्या होना चाहिए। सबसे पहले, हाँ मुंह हिल रहे, अनम्यूट करके भी बोलो। दैट इज योर पढ़ाई, स्टडी। इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। योर मेंटल हेल्थ, it is important be and it is urgent also. Your time with your family is definitely important and urgent as well. ये पता है क्यों बोल रही हूँ मैं, रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, एंड इन फैक्ट गुड रिलेशंस, फैमिलीज को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड रिलेशनशिप्स ओवर हियर, क्योंकि ना यूपीएससी की तैयारी में ना तुम्हारे साथ ऐसे बहुत लोग आएंगे जो तुम्हें रोज पता क्या बोलेंगे, तुम कोई कर सकते हो यार, तुमसे कोई होगा। ऐसे बहुत बहुत लोग आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, बहुत लोग आएंगे। और उस टाइम पे तुम्हें फैमिली सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे। उस टाइम पे तुम्हें फैमिली सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, जहाँ पे आप ये चीज को समझो कि घर वालों से बैठ के बात करनी है, उनके साथ शाम की चाय पीनी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली को भी दो। आज मुझे पता था मेरी क्लास है, मैं आज फिर भी ना चंद परवान के साथ
सुबह पार्क में गई हूँ 2 घंटे, जनरली मैं उस टाइम पे पढ़ती हूँ, बट मैंने कहा नहीं, बिकॉज दैट इज अ टाइम जब उसके पार्क टाइम है उसका, संडे। मैंने कहा ना मैं अपने बच्चों का टाइम कॉम्प्रोमाइज करूंगी, ना मैं चंद परवान। मैं रात को ही बैठ के पढ़ रही थी, मैंने अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज की, मैंने कहा मैं दोपहर को सो जाऊंगी, बट आई हैव टू बी एट द बोथ हैंड। सो आपको अपनी अपनी लिस्ट खुद बनानी पड़ेगी। इसको बैठ के थोड़ा सा विजुअलाइज करो, तुम्हारी और क्या चीजें आनी चाहिए, 2 मिनट लो, एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन प्लीज। किसी को डाउट? ये लिस्ट को प्लीज बनाओ कि तुम्हारी तुम्हारी दिनचर्या के अंदर ना, तुम्हारा जलपान का टाइम क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, अ, खाना खाना या कुछ करना, ये कैसे दिनचर्या चलती है तुम्हारी, और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या नहीं अर्जेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस कैटेगरी के हिसाब से बच्चे, इस कैटेगरी के हिसाब से, आई एम सॉरी ये तो बताना ही भूल गई, आपको चीजों को डिवाइड करना भी जरूरी है। अब यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी आएगी, हाँ जी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे पहली प्रायोरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली ये स्टडी, मेंटल हेल्थ भी, रिलेशनशिप। दूसरी, हाँ जी, दूसरे में क्या आएगा? सेकंड प्रायोरिटी किसको? ये फर्स्ट है, सेकंड किसको? ये डेफिनेटली ये तो फोर्थ होगा। पर मुझे इन दोनों से बताओ, इन दोनों में से आपका यहाँ पे, और ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों में से आपका सेकंड प्रायोरिटी आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए? एक्स की वाई? योर प्रायोरिटी शुड बी दिस वन, एंड द थर्ड इज योर दिस वन। इंपॉर्टेंट टास्क को समझो, इंपॉर्टेंट टास्क को, और जितना ये बच्चे आप ज्यादा समझोगे अपने आप को कि आपकी लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अर्जेंट है, दैट विल बी द टाइम जब आप एक्चुअली में अपने आप पे वर्कआउट कर सकते हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम शेयरिंग दिस पिक्चर विद एवरीवन। इसका ना बहुत सारे प्रिंट आउट निकालो, बहुत सारे प्रिंट आउट निकालो, एंड दिस इज द जर्नल। रोज बैठ के लिखो क्या किया आज, डेट लिखो, डे लिखो, लिखो कि आज आप कितने बजे उठे, कितने बजे सोए आप। उसके बाद डेली टारगेट्स आपके क्या हैं, ये लिस्ट डाउन करना बहुत जरूरी है। क्या आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना टाइम डेडिकेट किया, और आपने आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स दे रहे हो, और की इम्प्रूवमेंट्स किन एरिया में करनी चाहिए, कौन से रिवीजन करने के लिए टॉपिक्स। दिस विल कम विद द टाइम, बट अपने आप को बताओ कि आज जो आपने पढ़ा है उसको एक पेज पे लिख के सबसे पहले उसको रिवाइज किया आपने, टिक। क्या आपने पिछले हफ्ते जो पढ़ा उसको फटाफट से पढ़ा, टिक। आपने जो पिछले महीने पढ़ा है उसको पढ़ा, टिक। और उसके बाद कौन से टॉपिक्स अभी रहते हैं जो रिवीजन करने के लिए, या आपने जो रिवाइज कर लिए उसको नोट डाउन लिखना शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट न्यूज, जो तुम्हें लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, थीम चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख लेता हूँ और विद टाइम इसको मैं पढ़ूंगा। जैसे लेबर लॉज हुए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन हुई है, आपकी करंट बेस्ड थीम्स, करंट अफेयर्स। ये जो फ्राइडे की जो फ्री मेरा ये वाला डेमो चलेगा ना, जो मैंने करंट अफेयर्स का मैंने पोर्शन किया है, ये बच्चा वही है। हम लोग सेम करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं मैं खुद टेकअप करूंगी थीम वाइज।
मैंने खुद इस चीज को फ्राइडे को डेडिकेट कर दिया इस चीज को, यार मैं करूंगी। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हम जो वीकली करंट अफेयर्स करते हैं उसमें सारे वीक के पढ़ते हैं, पर कई बार उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसको कैसे पढ़ना है, एसिमिलेट करना है, वो रह जाता। तो हर फ्राइडे को मैं खुद क्लास में आप लोगों को टिकअप किया करूंगी इस क्लास में। कीवर्ड्स, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, पर अगर आपने ये किया यू विल बी आउटस्टैंडिंग। हर रोज 3 से 4 से 5 वर्ड्स। इनफैक्ट मैं अभी ना क्लासरूम एमेंड कर रही हूँ मेरा ऑफलाइन। मैंने बात काफी कुछ किया है, अभी काफी कुछ उसमें पेंडिंग है, और उसमें मैं एक सेगमेंट बना रही हूँ सिर्फ कीवर्ड्स के लिए, कि रोज 5 कीवर्ड्स हम लोग बैठ के लर्न किया करेंगे ऑफलाइन में। दिस इज एडवांटेज टू द ऑफलाइन वन। वहां पे एक बोर्ड लगाऊंगी, व्हाइट बोर्ड लगाऊंगी एक सेगमेंट में, वहां पे रोज बच्चे भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगी, और वो 5 कीवर्ड्स हम लोग रोज बैठ के लर्न किया करें। ये आप लोग अपने बिहाफ पे ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि एक यूपीएससी की एक सर्टन वोकैबुलरी है, हमें पता होता है पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कीवर्ड्स के थ्रू आप लोगों को पता होना चाहिए। सो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं कि कैसे टाइम प्लानर्स आप लोग लोगे, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब है बस बैठ के बोर होना, मेडिटेशन का मतलब बस बैठे और बोर हो जाओ। और मैं ना ऑनलाइन मैंने इसीलिए लिंक भेजना बंद कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन वाले आते ही नहीं कभी, पर ऑफलाइन में बहुत बच्चे आके मेडिटेट करते हैं। मेरी मंडे मैनिफेस्टेशन क्लास होती है। Every Monday there is a manifestation class for every student of my academy student, जहाँ पे मैं आप लोगों को मेडिटेशन करना सिखाती हूँ, जहाँ पे हम बैठ के सिर्फ अपने आप की सोल से बात करते हैं, क्योंकि टू गेट अलाइन विद योर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंडे को भेजूंगी फिर से, तो ज्वाइन कर लेना। 3:30 होता है, 3:30 इज द टाइमिंग। जो एकेडमी स्टूडेंट्स है दैट इज फॉर देम, ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं है जी। फिर उसके बाद क्या आपने अच्छा खाया, क्या आपने अच्छा पिया, क्या आपने प्रॉपर स्लीप ली। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, कि क्या होता है जब हम लोग ना पढ़ते हैं। बच्चे इस चीज को समझना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते कुछ और है, रीड कुछ और करते हैं, अंडरस्टैंड कुछ और करते हैं, लिखते कुछ और है। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट, ये 3 डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। रीड क्या कर रहे हैं और अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, यहां पे फर्क आ जाता है। अंडरस्टैंड करते हुए फिर जो लिखते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, और यहाँ पे हमेशा एक ना डिप हो जाता है, डिप डिप फिर डिप, और उसके बाद काम खराब, उसके बाद काम खराब, क्योंकि तुमने अच्छे से ना पढ़ा, ना अच्छे से रीड किया, ना अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तुम्हें ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, ढंग से राइट करना है। अब ये राइट वाला तभी समझ में आएगा जब ये 3rd पर्सन अकाउंटेबिलिटी आएगी। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का बैच 3rd अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर टुमारो। इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, और मे बी द नेक्स्ट बैच, और जब भी आप आना चाहते हो, तो ये आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी बहुत जरूरी है। ऑनलाइन जितने भी आप लोग हो, आप भेजो, रोज भेजो जो आप लिख रहे हो, ताकि हमें पता लगे एग्जैक्टली आप क्या कंसीव कर रहे हो, क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप लिख रहे हो, और जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्या वो ठीक है। ये आप कभी भी ठीक अपने आप करेक्ट नहीं कर सकते। What you are writing will be corrected by the 3rd person, इसीलिए कोड जरूरी है। दिस इज नॉट नॉर्मल। कल मैं पहले कभी नहीं ये चीज बोलती थी, बट मैंने कल देखा कि पीपल हु से कि हमने कभी नहीं लिया ना कोचिंग, कल वो भी जब पहुंचे हुए थे और वो रिस्पेक्ट टीचर्स को इतनी दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तब मुझे पता लगा फाउंडेशन तो हर बच्चा करता है टॉपर। इफ यू आर लिसनिंग टू सच स्टूडेंट्स कि हमने खुद किया,
वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 80% वो वाकई खुद करते हैं, बट जो 20% अकेडमीज देती है ना, वो सबसे जरूरी पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेते, वो लेते हैं। मैं खुद बोल रही हूँ कि हम सिर्फ आपको डायरेक्शन देंगे, उसके बाद भागना आप लोगों को है, बट वी विल मेक श्योर कि आपके साथ भागे। और थ्रू आउट द ईयर 12 महीने की हमारी कोचिंग चलती है। मैं आई विल मेक श्योर कि मैं 10 मंथ्स तक आप लोगों के साथ अटैच रहती हूँ, खुद टीच करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आगे सिर्फ टीचर्स रखे, नो, आई टीच ज्योग्राफी, पॉलिटी, योर करंट बेस अफेयर्स थीम, जो कि अभी हम लोगों ने शुरू किया है। एनवायरमेंट इज टेकन अप बाय मी, एंड देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड द ग्रे एरियाज ऑफ योर जीएस, जो कहीं कवर नहीं होते, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब कुछ। इस ग्रे रूम को भी हम लोग सोच रहे हैं कि आर्ट डेडिकेट कर देंगे, जहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग के बच्चे सब इकट्ठे होंगे और उस सेगमेंट में हम लोग ग्रे एरियाज को डिस्कस करेंगे। So that's all from my side. I'm stopping the recording.